Hello, good morning, students. How are you all? I hope everybody is good and doing well. So, first of all, write your essay number and number of questions which you have solved from this chapter, issue of shares. Okay, student, this is very most important chapter from our syllabus, and now we are going to finish this chapter within upcoming 4 to 5 videos. Okay, in this video today we will solve question number 60 and 62. So if you are having DQL book, open your DQL book. Otherwise, see the question on the screen and then solve. See, students, question is a company limited issued पब्लिक सब्सक्रिप्शन फॉर 60,000 शेयर. कंपनी ने कितने शेयर पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए इशू करे? 60,000. द रेट वॉज 10 ईच एट अ प्रीमियम 4 पर शेयर. Premium was 4 per share, 4 on application, 5 on allotment, 2.5 on first call, 2.5 on final call. Okay. Now applications were received for 75,000. Okay. The shares were allotted on pro rata basis to the applicant of 70,000. Means 5,000 shares were rejected beta. Okay. The remaining application being rejected, बची हुई remaining application reject कर दी गई. Money overpaid on application was adjusted towards allotment, and whatever extra money was collected, beta, that was transferred to allotment account. Okay, that will be adjusted on allotment. Now A, to whom 1200 shares were allotted, failed to pay allotment and calls money, and B, to whom 1800 shares were allotted, failed to pay 2 calls. These shares were subsequently forfeited after first and final call was made. Okay, अब ये जो शेयर्स हैं अलॉटमेंट एंड कॉल्स मनी नहीं दे रहे हैं 1800 बेटे, दे वर forfeited आफ्टर द पेमेंट ऑफ first and final call. Okay, so what we have to do, first of all we have to understand about the pro rata. Note down on your copy. क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा? 60,000 हमने ऑफर कर रहे थे, एप्लीकेशन आ गई 75 की. ओके, बट वी आर एक्सेप्टिंग ओनली 70,000, एंड जब हम 70 को एक्सेप्ट कर रहे हैं बट स्टिल वी आर हैविंग 60,000 एप्लीकेशंस, सो वी विल अलॉट 60,000 शेयर्स टू देम. ओके, हम लोग क्या करेंगे, 70 की एप्लीकेशन आई हमने रख ली, पर उनको हमने 60 का अलॉटमेंट दे दिया. हमने कहा कि 10,000 का जो एक्सेस मनी है आपका वो हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे, एंड 5,000 वर नील. That is why I have written here nil. Okay, any problem anywhere? Note down this. Now see what we will do. We will receive application with these 75,000 shares. हम लोग application तो इसे receive कर लेंगे, but whenever we will adjust these shares, okay, so in that case we have to move forward. Okay, so now and next to there is shareholder A, to whom 1200 were allotted. He failed to pay allotment. So first of all they receive application money beta. So how much we will get application? Here we are preparing cash book, so bank entry will not be prepared in the journal. We have to transfer this journal entry in the cash book. So prepare format and write 2 share application बेटा. जर्नल एंट्री यही तो होगी आपकी अगर हम जर्नल बनाएं तो बैंक अकाउंट डेबिट 2 share application, 2 share application. So here I have written 2 share application. 75,000 की एप्लीकेशन आई थी, 4 के हिसाब से 3 लाख लिख दिया. ओके, 5,000 वर रिजेक्टेड ना बेटा, तो ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल जब करोगे या रिफंड करोगे 5,000, उसके लिए क्या हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक. सो हेयर बैंक विल बी क्रेडिटेड, इसलिए कैश बुक की क्रेडिट साइड में हमने लिख दिया बाई शेयर एप्लीकेशन 20,000. हाउ इट केम, 5,000 इंटू 4 इक्वल टू 20,000, ये लिख दिया गया बेटा. ओके, सो इज़ इट क्लियर? ये हो गई 2 एंट्रीज हमारी एप्लीकेशन की. नाउ वी विल एडजस्ट रिमेनिंग बिकॉज एक्चुअल मनी वी हैव टू कलेक्ट, जितना हमारे पास आना चाहिए था दैट शुड बी 60 लाख इंटू 4, 60,000 इंटू 4, 2 लाख
40,000 हमारा बन रहा था लेने वाला एप्लीकेशन का 60,000 शेयर की जिससे हमने अलॉटमेंट करी है, ओके। बट हेयर वी हैव गॉट इट 3 लाख, तो फ्रॉम 3 लाख वी कैन सब्ट्रैक्ट 20,000 तो हमने वापस कर दिया, बचा 280 एंड एक्चुअल एप्लीकेशन इज 240, सो 80,000 विल 40,000 विल बी ट्रांसफर टू शेयर अलॉटमेंट, ओके। सो दिस वे वी विल एडजस्ट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। देखो जो रिफंड की एंट्री है वो ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दी है क्या होगी पास, 70,000 से इंटू 4 280 हो जाएगा बेटा। 2 शेयर कैपिटल एक्चुअल में हमारा कितना रहा था 240 कर लिया, नाउ 2 शेयर अलॉटमेंट बेटा इट विल बी 40,000, ठीक है। 10,000 शेयर्स जो थे उनको हमने अलॉटमेंट नहीं दी, उनका पैसा लेकर के उनको बोल दिया कि दीज विल बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, सो 10,000 इंटू 4 कर दिया तो 40,000 उसका अलॉटमेंट मनी आ गया, ओके। सो कैपिटल अकाउंट फॉर 60,000 एंड टू अलॉटमेंट अकाउंट 10,000 विल बी ट्रांसफर्ड। सो फर्स्ट एंट्री क्लियर हो गई। नाउ वी विल ड्यू अलॉटमेंट फर्स्टली, उसके बाद बताता हूँ क्या करना होगा। नाउ सी शेयर अलॉटमेंट विल बी ड्यू, अब तो पता है ना कि जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है आफ्टर एडजस्टमेंट ऑल द एंट्री विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेस ऑफ इशूड शेयर। क्यों बेटा इशू पे होती हैं, क्योंकि जब हमारे पास एप्लीकेशन 60,000 ही शेयर हमने ऑफर कर रहे हैं, फॉर लेट्स टेक एन एग्जांपल कि इफ़ यू आर हैविंग अ प्लेस ऑफ अपॉइंटिंग 60,000 ओनली 70,000 पीपल्स केम, तो यू विल तो सेलेक्ट ओनली 60 ना, अदर तो यू विल एडजस्ट, तो सेम यहाँ पे आ जाएगा बेटा। सो दैट इज़ वाई 2 शेयर कैपिटल अकाउंट देयर इज नॉर्मल इट इज़ 1 रुपी एंड प्रीमियम वाज 4 रुपीज़, टोटल रेट 5 था, 5 से प्रीमियम 1 माइनस करा तो बचा 1, सो 60,000 इंटू 1 60,000 एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम 60,000 इंटू 4 3,40,000, तो टोटल मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट दैट इज़ 3 लाख। कितना हो गया बेटा 3 लाख, 40,000 ऑलरेडी रिसीव्ड, 40,000 ऑलरेडी रिसीव्ड, तो इट विल बी 2,40,000 बेटा। अब 240 में भी कह रहा है कि 1800 शेयर्स विल नॉट पे, सो हाउ वी विल कैलकुलेट देयर अमाउंट वो भी आपको दिखाता हूँ फर्स्टली वर्किंग नोट से। सी वर्किंग नोट बेटा, अ शेयर होल्डर हु हैज़ अलॉटेड 1200 शेयर ही इज़ नॉट पेइंग अलॉटमेंट, बट देखो ये उसी ग्रुप से है ना 60,000, जब 70,000 को 60 मिले हैं तो इस 1200 को जो शेयर जिसको शेयर्स मिले हैं ही हैव ऑल्सो अप्लाइड फॉर मोर ना, तो कितने के लिए अप्लाइड करा था, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट दिस, ओके। इफ़ 60,000 अलॉटेड गॉट अप्लाइड फॉर 70 देन 1200 को कितना मिला होगा, तो 70/60 इंटू 1200। हमेशा याद रखिएगा अगर अप्लाइड निकाल रहे हैं आप तो अप्लाइड अपॉन अलॉटेड आएगा, और अलॉटेड निकाल रहे हो तो अलॉटेड अपॉन अप्लाइड आएगा, ठीक है। जो चीज़ निकालने जा रहे हो आपका वही ऊपर रहेगा और डिवाइड बचे हुए से हो जाएगा, और इनटू आपके जो शेयर्स दे रखे हैं उनसे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ओके। सो हमने कैलकुलेट किया ही हैज़ अप्लाइड फॉर 1400 शेयर्स, ठीक है। अब 1400 के लिए है बेटा, तो 1400 के लिए जब था तो उसने एक्स्ट्रा मनी भी तो दिया होगा ना फिर, तो 200 शेयर उसके एक्स्ट्रा थे, 4 रुपये के हिसाब से 800 रुपये उसने एप्लीकेशन के टाइम में अलॉटमेंट का एडवांस दे दिया। नाउ सी फ्रॉम दीज 1200 हमें ड्यू 1200 से ही करना है बेटा, जितने हमने उसको दिए हुए हैं उसके हिसाब से हमारी 5 रुपये के अकॉर्डिंग लेने वाली अलॉटमेंट बन गई 6,000 की, बट स्टिल ही पेड 8,000 इन एडवांस, दैट इज़ वाई ओनली 50,000 विल बी कलेक्टेड फ्रॉम हिज साइड, ठीक है। तो प्लीज़ नोट डाउन दिस। Now receipt entry of the bank will allotment will be 2,54,800, ठीक है, जो कैलकुलेट कर रहा था बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, फोर्थ एंट्री आएगी ना, दैट विल बी हियर, ओके। नाउ नेक्स्ट एंट्री विल बी फॉर फर्स्ट कॉल। सी इन क्वेश्चन इन फर्स्ट कॉल 1200 तो ये जिसको अलॉट हुए थे ए एंड बी ऑफ 1800 शेयर होल्डर, यानी कि कुल मिला के 3,000 शेयर जो हैं दे आर नॉट पेइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी विल ड्यू फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल ड्यू तो 60,000 से हो जाएगी, 2.5 रेट है, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 150 आ जाएगा बेटा, 1,50,000 1,50,000 आ जाएगा, ओके। एंड सेम वे फाइनल कॉल विल बी ऑफ ऑल्सो 150, तो 150 की ये ड्यू हो जाएगी, ओके। नाउ सी इन द कैश बुक व्हाट विल बी रेसिप्ट एंट्री, देखिए 60,000 शेयर्स थे, 2.5 के अकॉर्डिंगली उनका बन रहा था
150, but 3000 shares of rupees 2.5 each is not being, means 7500 from application we are not getting. So here we will get only 1,42,500, and in first call also we will get 1,42,500. Okay, now we will sum up all the debit side एंड द क्लोजिंग बैलेंस विल बी 8,52,000. जब डेबिट का ज़्यादा आ जाएगा, क्रेडिट आप माइनस कर दोगे तो 8,52,000 आ जाएगा. ओके, अगेन सी फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड ना, तो 2 एंट्री कैश बुक में और आएंगी, 2 शेयर कैपिटल एंड 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. ठीक है, देन टोटल हो जाएगा 872,800. ओके, एंड फ्रॉम हेयर we will subtract this 20,000, then it will be 8,52,000. Okay, so this way this question is completed. And now whatever profit will be there on forfeited shares, how we will forfeit? 3,000 shares were there, into 10 आपने कर दिया 30,000. सिक्योरिटी प्रीमियम वाज 4 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट, एरियर पे 4 रुपये का था, तो जिस एंट्री पे बेटा प्रीमियम है और वो एरियर में भी है, इन दैट केस यू हैव टू डेबिट प्रीमियम आल्सो वाइल फॉरफीचर. तो अब देखिए अलॉटमेंट पे एरियर 2 शेयर अलॉटमेंट 4252, ऑन फर्स्ट कॉल 7500, ऑन फाइनल कॉल 7500. सो रिमेनिंग बैलेंस जो आप इसे माइनस करेंगे 14,600 विल बी ट्रांसफर टू फॉरफीचर अकाउंट. एंड ऑल द फॉरफिटेड शेयर वर इशूड ऑन प्रॉफिट. ठीक है, ऑलरेडी वो प्रीमियम पे जा रहे हैं, तो इसलिए जितना आपका प्रॉफिट था सारा का सारा कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा. ओके, so and this is the question working note. and now you can see 62 question. 62 में भी सेम वही चीज़ है बेटा, 50,000 वर इशूड, 60 वर रिसीव्ड. ओके, एंड ऑल एप्लीकेशन वर मेड ऑन प्रो राटा बेसिस. तो सेम उसी तरह से ये भी लगेगा जैसे मैंने समझाया है आपको कि 10,000 को आपका अलॉटमेंट एडवांस रिसीव कर लेना है. आफ्टर दैट यू विल एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट. ओके, and prepare journal entries. So this you have to do by yourself, it is your homework. And 63 64 question also you have to do. Okay, so solve all these questions on your copy. Thank you students, bye bye, take care.